Good morning, everyone. Good morning, ma'am. How are you all? क्या चल रहा है? Morning, ma'am. आप में से कोई आया था कॉलेज सैटरडे को? नहीं मैम, रेडियो पे बैठे थे। कोई नहीं आया था, वेदर खराब था ना एक तो। गए थे शायद 2-3 बच्चे गए थे हमारी क्लास में से। चलो आज we have to start with a new topic that is window and viewport, which is the topic of unit 2 part 2. ठीक है? What is window and viewport? Very important topic. Window viewport transformation आपने देखा होगा, many times it has been asked in exam. Okay, अच्छा, I have given assignment 2 also. Check किया है किसी ने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, आपकी क्लास में all the students have not joined the classroom. बहुत कम बच्चों ने क्लासरूम ज्वाइन किया हुआ है, ऐसा क्यों है? इतने हैं ही मैम बच्चे। ओ नहीं, एनरोल तो काफी बच्चे हैं। आज them अपने ग्रुप में मैसेज डाल दो कि आज them to join the classroom. ठीक है, क्योंकि सारे नोट्स और सब कुछ वहीं पे अवेलेबल है। मैं एक बार असाइनमेंट 2 डिस्कस कर देती हूँ। इफ यू हैव एनी डाउट, वैसे तो आई हैव डिस्कस एवरी क्वेश्चन इन द क्लास, बट स्टिल एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है। सबने देख लिया है? सबने चेक किया है? कल बाय इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग तक मैंने दे दिया था। एक मिनट, इज ओपनिंग अप, बहुत टाइम लग रहा है ओपन होने में। और जो टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज विंडो एंड व्यू पोर्ट। उसमें व्हाट इज अ विंडो, व्हाट इज अ व्यू पोर्ट, इसको कोई आइडिया है क्या होता है विंडो? वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, विंडो, व्यू पोर्ट कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कुछ पता है? ओके, नो इशू, विल बी स्टार्टिंग इट टुडे इटसेल्फ। ओके, सो ये असाइनमेंट शेयर हो गया सबको? Yes, ma'am. Okay, just see the first question. Question number 1 has two parts. One is Cohen-Sutherland and Sutherland-Hodgman. ये दोनों मैंने आपको कराया है, and both the algorithms you have to explain with examples. ठीक है, proper diagram बनाना है, with example you have to explain. Cohen-Sutherland line algorithm, do not look for the marks. ये आपको long questions में ही attempt करना है. Proper आप Cohen-Sutherland की working बताएंगे and with an example. Similarly, Sutherland-Hodgman की working आपको बतानी है and with example you have to explain. Okay. Now see the question number 2. Question number 2 is what we are doing today or day after tomorrow. That is, develop a composite matrix to perform window and viewport transformation. Window to viewport transformation का matrix you have to develop. उसके लिए you have to undergo with a mapping कि क्या होती है. So in today's class, we will be studying that what is a window, what is a viewport, and in theoretically we'll be studying that how do we map a window to viewport. And then in tomorrow's class, we will be deriving the matrix also. Okay? Now look at the question number 2, part 2. Find the mirror reflection of the triangle about x-axis. ये question कैसे करोगे? Find the mirror reflection of the triangle. Triangle के coordinates given है about x-axis. x-axis में क्या होता है? x-axis के केस में reflection है, तो हम क्या करते हैं? What is the matrix for reflection about x-axis? हाँ जी, याद है कुछ कि सब भूल गए हो? Reflection about x-axis. x dash will remain, बताया था ना मैंने, x dash क्या होता है? जो आपका न्यू कोऑर्डिनेट है will remain as the same, and y dash
will become the negation of y. ये आपका था रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस में. तो ये हमारा जो मैट्रिक्स डिराइव होगा वो क्या होगा 1,0 and it is 0,-1. This was the matrix for reflection about x axis. देखो reflection about x axis, reflection about y axis. अगर x में है तो y नेगेटिव होगा, y में होता है तो x नेगेटिव होता है. दो तो ये हो गए. तीसरा, जब आप ओरिजिन पे करते हो तो आपका ओरिजिन के केस में क्या होता है, बोथ बिकम नेगेटिव. x dash becomes -x and y dash becomes -y. कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल याद. We have done it in class, ना? See, this is a matrix. Yes, this is a matrix for reflection about x axis. ठीक है. y axis का मैं बता रही हूँ कि y axis के केस में it will become -1 0 and it is 0 1. This is the reflection about y axis. And when we are talking about reflection about origin के केस में हमने क्या पढ़ा था कि x dash becomes -x and y dash becomes -y. So उस केस में हमारा मैट्रिक्स जो होगा that will be -1 0 0 -1. This is about origin. Then हमने पढ़ा था reflection about a straight line, that is y equals to x, है ना? ये भी पढ़ा था. तो reflection about a straight line y equals to x में क्या होता है, क्या होता है उसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं. x dash becomes y and y dash becomes x. तो अगर इसका मैट्रिक्स लिखोगे तो it will be 0 1 0 1 1 0. ये है आपका मैट्रिक्स किसका, अबाउट अ स्ट्रेट लाइन. और रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल्स टू -x में क्या होगा कि x आपके नेगेट हो जाएंगे और एक्सचेंज भी हो जाएंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा -1 और यहाँ पे भी आ जाएगा -1. तो ये पांचों केसेस आपको टिप्स पे याद होना चाहिए. इफ एनीवन आस्क यू, यू शुड बी वेरी मच इन क्लियर कि जब आप रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस कर रहे हो तो उस केस में आपका x dash remains x and y dash becomes negative. तो आपके कोऑर्डिनेट मैट्रिक्स क्या आ जाएगा 1 0 0 1. देखो याद रखने का तरीका यही है कि आपको कंसेप्ट याद हो. अगर आपको कंसेप्ट याद होगा द मैट्रिक्स यू कैन डिराइव इट वेरी इजीली. अगर आप मैट्रिक्स को याद रखने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कर पाओगे. ठीक है, आपको कंसेप्ट याद करना है कि जब आप y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करा रहे हो तो आपका x नेगेटिव होता है, जब x एक्सिस में कराते हो तो y नेगेटिव होता है, और जब ओरिजिन पे कराते हो तो दोनों नेगेटिव होते हैं. ठीक है, और जब स्ट्रेट लाइन में करते हो तो एक्सचेंज हो जाते हैं, और जब y इक्वल्स टू -x में करते हो तो एक्सचेंज के साथ साथ नेगेटिव भी हो जाता है. तो ये जब आपको इक्वेशंस याद होंगी ना, देन यू कैन डिराइव द मैट्रिक्स. इज इट क्लियर? ये आपको तरीका ही पता चल गया है कि कैसे रिफ्लेक्शन के मैट्रिसेस याद रखने हैं. जी, क्लियर हो रहा है कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There is only one student who want to respond. What about others? एक तो क्लास इतने कम बच्चे लेते हैं ना. अभी निखिल आया था, चला गया क्या? चला गया ये. और प्रशांत कौशिक, why are you not attending the classes regularly? बहुत कम आ रहे हो आप भी. उस दिन तो आप बोल रहे थे कि आप रेगुलर आओगे. अब हाँ जी मैम. तो आप रेगुलर क्यों नहीं हो क्लास में? मैम वो एक्चुअली मैं ना इस टाइम गांव में ही हूँ अपने, तो क्या कहते हैं वहाँ पे जैसे नेटवर्क आ जाते हैं मैं क्लास ले लेता हूँ. कहाँ रहते हो, कहाँ है आपका विलेज? नोएडा. फोन में नेटवर्क नहीं आते आपके? मैम यहाँ पे नेटवर्क का इशू है, मतलब कुछ टाइम से चल रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा से, पर कुछ टाइम से नेटवर्क इशू चल रहा है बहुत ज्यादा. चलो क्या कर सकते हैं. कुछ ज्यादा ही चल रहा है. क्या है मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी क्लास नहीं ले रहा, जैसे मतलब नेटवर्क आ जाता है मैं क्लास ले लेता हूँ, मतलब प्रॉब्लम आ रही है नेट की वजह से ही. वैसे आपका एक प्रोविजन है कि वी आर रिकॉर्डिंग द सेशंस एंड एवरी रिकॉर्डेड सेशन का मैं लिंक क्लासरूम पे डाल दूंगी. So if you want to recap the session, you can go and listen the
session again when you are in network. ठीक है? So Yeah, ma'am. I can. हाँ, तो वो हम करेंगे अभी, मैं डालूंगी अभी लिंक सारे, ठीक है? वैसे भी all the lectures will be uploaded on YouTube also, तो वहां से भी आप लोग सुन सकते हो, ठीक है? चलो लेट्स प्रोसीड। ये आप लोग कर लोगे, ठीक है? उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट क्या गिवन है कि ऑल्सो वर्क आउट द ट्रांसफॉर्मेशन टू रोटेट द अबव ट्राइंगल अबाउट अ पॉइंट P clockwise, see clockwise by 90 degree, क्या है एंगल? by 90 degree, yes. So यहाँ पे you have to see carefully, also work out the transformation to rotate the above triangle. You have to take the above triangle, रिजल्टेंट ट्रायंगल नहीं लेना है, ठीक है? इन दोनों में डिफरेंस समझो। एक अगर यहाँ पे लिखा होता रिजल्टेंट ट्रायंगल, तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन करके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स आते उसको आप यूज करते, बट यहाँ पर दे आर टॉकिंग अबाउट द अबव ट्रायंगल, जो ट्रायंगल के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स है उसी को यूज करके आपने उसको अबाउट अ पॉइंट P. So this is a case of reflection about a rotation about a point P clockwise by 90 degree. Will you able to do that? इसमें क्या करेंगे सरिता हम? Yes, what will we do in this case? What is reflection about a point? क्या process होता है reflection about a point का? We are studying rotation about a point. तो क्या क्या steps होते हैं? I'm asking that. What is the first step? क्या करते हैं हम? Who will tell me? Vikas, will you able to tell this? Vikas Kumar. No, ma'am. Rotation पता है कैसे करते हैं? Okay, just see this diagram. Now am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so just see this diagram. यहाँ पे देखो, ये पूरा आपका सीन है, ठीक है? अब इस सीन में आपने अपनी विंडो जो डिफाइन की वो ये विंडो डिफाइन की। इस विंडो के अंदर का जो व्यू है वो अगर उस व्यू पे आप इंटरेस्टेड हो तो वो व्यू देखना चाहते हो, इसका मतलब आपने अपनी जो क्लिपिंग विंडो है वो यहाँ प्लेस की, दैट मींस यू आर इंटरेस्टेड इन ओनली द व्यू व्हिच इज इनसाइड दिस फोर एजेस, ठीक है? तो ये आपका विंडो का कंसेप्ट है, और विंडो के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसको हम बोलते हैं एक्स डब्ल्यू मिन, एक्स डब्ल्यू मैक्स, वाई डब्ल्यू मिन एंड वाई डब्ल्यू मैक्स, ठीक है? जस्ट सी द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे डेजिग्नेट कर रहे हैं? दिस इज एक्स मिन ना, ये लोअर लेफ्ट जो है वो एक्स मिन होता है, क्योंकि ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स है तो इसको हम बोल रहे हैं एक्स डब्ल्यू मिन, and this is xw max, this is yw min and this is yw max. और व्यू पोर्ट क्या होता है? व्यू पोर्ट इज बेसिकली जब हम उस पर्टिकुलर एरिया को, उस पर्टिकुलर सीन को हम अपने डिवाइस के कोऑर्डिनेट में, व्हेन वी वांट टू मैप द एंटायर सीन इनटू अ डिवाइस, ठीक है? अपने ये मेरा जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पे अगर मैं इस पूरे को मैप करना चाहती हूँ, इस पूरी सीन को, तो व्यू पोर्ट इज बेसिकली द
एक स्क्रीन में, एक बात सुनो, एक स्क्रीन में एक से ज्यादा व्यू पोर्ट हो सकते हैं, ठीक है। आई कैन हैव मोर देन वन व्यू पोर्ट ऑन वन स्क्रीन। व्यू पोर्ट क्या है कि आपने अपनी स्क्रीन को में अलग अलग लेफ्ट पोर्शन पे, राइट पोर्शन पे, बॉटम में, लेफ्ट, लोअर लेफ्ट में अपने व्यू पोर्ट डिफाइन करते हैं कि मैं यहाँ पर भी अपनी सीन को देखना चाहता हूँ, यहाँ पर भी देखना चाहता हूँ। तो पूरे सीन को अपने व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंगली मैप करना। देख रहे हो ये पूरा इतना एनलार्ज इमेज है, उस इमेज को कितना शॉर्टन कर दिया है। Can you able to see that? ये पूरी enlarged image को is being shortened, map, इसको मैप किया है अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर व्यू पोर्ट, और उस कोऑर्डिनेट्स को हम बुला रहे हैं एक्स वी मिन, एक्स वी मैक्स, वाई वी मिन एंड वाई वी मैक्स। अब मैं यहाँ पर जरा आपको डेफिनेशन बता दूं कि व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन। आप मुझे अटेंडेंस भेज देना दीपक, ठीक है। दीपक, आर यू इन देयर इन द क्लास? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट ऑफ विंडो एंड व्यू पोर्ट। सो बेसिकली वी हैव सीन व्हाट इज अ विंडो। विंडो सबको क्लियर हुई कि क्या होती है विंडो। अब अगर आप क्या कर रहे हो, द मेथड फॉर सिलेक्टिंग एंड एनलार्जिंग पोर्शन ऑफ द ड्राइंग इज कॉल्ड विंडोइंग। सबसे पहले विंडोइंग क्या होता है कि आपके पास ये ड्राइंग थी, मैंने अभी आपको एक डायग्राम दिखाया था, ये डायग्राम में देखो, दिस इज द ड्राइंग दैट यू हैव। अब आपने ये वाला पोर्शन सिलेक्ट किया, पर्टिकुलर ये एरिया सिलेक्ट किया, कैसे? बाय प्लेसिंग अ विंडो ओवर हियर, ठीक है। सो दिस इज द पोर्शन दैट यू हैव सिलेक्ट, और इस पोर्शन को अगर आप एनलार्ज करोगे, जैसे मैप में क्या करते हो, जब आप गूगल मैप पे काम करते हो तो पूरा एरिया होता है, अगर आपको एक पर्टिकुलर एरिया देखना है, उसको जूम करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे आप डबल क्लिक करते हो, तो वो क्या हो गया, विंडोइंग। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विंडोइंग। कि आपने पूरे एरिया में से एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइन किया कि जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, and you enlarge that particular area. So definition is the process of enlarging, see, method of selecting and enlarging the portions of the drawing is called windowing, ठीक है। Now अब आपको करना क्या है, अपनी विंडो को जो आपने सिलेक्ट करी है उसको व्यू पोर्ट में कन्वर्ट करना है। व्यू पोर्ट का मतलब क्या है कि जिसमें आपके डिवाइस के अंदर आप उसको मैप कर सको। आपका डिवाइस मतलब कि आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले यू मस्ट बी क्लियर विद द टर्म दैट व्हाट इज व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है? नाउ इट मे हैपन दैट यू मे नॉट वांट टू यूज द एंटायर स्क्रीन फॉर डिस्प्ले। जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, let's suppose this is your computer screen, ठीक है। let's suppose this is your computer screen, and अगर आप पूरी कंप्यूटर स्क्रीन में इंटरेस्टेड नहीं हो अपनी ऑब्जेक्ट को दिखाने में जो भी आपने सिलेक्ट किया है, तो आप क्या कर रहे हो, एक व्यूइंग एरिया डिफाइन कर रहे हो। यू वांट सम पार्ट ऑफ द स्क्रीन कि जहां पर आपकी इमेज जो है वो डिस्प्ले हो। सो द विंडो कैन बी मैप्ड डायरेक्टली ऑन द डिस्प्ले एरिया ऑफ द डिवाइस, और उस सब रीजन को हम क्या बुलाते हैं, व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब कि कहाँ पे आप अपनी सीन को दिखाना चाहते हो, ठीक है। सो द वर्ल्ड कोऑर्डिनेट एरिया सिलेक्टेड फॉर डिस्प्ले इज कॉल्ड विंडो। विंडो का मैंने आपको बताया कि विंडो में जब आप विंडो की बात कर रहे हो तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेट। एंड जब हम विंडो को कन्वर्ट करते हैं व्यू पोर्ट में, व्यू पोर्ट इज अ पर्टिकुलर एरिया। इफ समवन आस्क यू दैट व्हाट इज अ व्यू पोर्ट इन कंप्यूटर ग्राफिक्स, so viewport is nothing but it is a particular area onto the screen where you want to show the image of the window, ठीक है। अब आपको कैसे कन्वर्ट करना है, that you have to study। ये देखो इस डायग्राम में देखो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो, ऑल ऑफ यू कैन सी दैट डायग्राम। ये आपका एक ऑब्जेक्ट स्पेस है। ऑब्जेक्ट स्पेस क्या होती है, इमेज स्पेस क्या होती है, वी विल डिस्कस इट टुमारो। यहाँ पर देखो, पहले तो ये अंडरस्टैंड करो कि ये पूरी आपकी एक इमेज है, ठीक है, और यहाँ पर आपने अपनी विंडो प्लेस करी, दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो ये विंडो आपने प्लेस करी। इस विंडो को जब आप, बाकी तो एरिया में आप इंटरेस्टेड नहीं हो ना, तो आपकी इमेज स्पेस में क्या आ गया, खाली ये रीजन।
और जब आप इस इमेज स्पेस को अपने वर्ल्ड मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स डब्ल्यू मिन, एक्स डब्ल्यू मैक्स, ये वाला कौन सा है आपका एक्स वाई मिन एंड एक्स वाई मैक्स, ये कोऑर्डिनेट्स है। तो ये जब आप इसको मैप करोगे अपनी स्क्रीन में, देखो ये पूरी स्क्रीन है, अब पूरी स्क्रीन में यू आर नॉट डिस्प्लेइंग दिस ना, यू आर डिस्प्लेइंग द विंडो एरिया